بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے دونوں لشکروں کے وسط میں آ کر مقابلے کے لیے للکارا، پھر وہ اپنی تلوار بلند کر کے اپنا شجر نصب اور اپنی قوت و طاقت کی داستانیں بیان کرنے لگا۔ اس کے مقابلے کے لیے میدان میں عدیم، مسنا اور کئی دیگر مجاہدوں نے بھی اترنا چاہا، پر خالد بن ولید نے سب کو روک دیا اور خود اس ایرانی پہلوان سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب خالد بن ولید اس ایرانی پہلوان کے پاس گئے تو اس نے بڑی رعونت، بڑے تفاخر سے پوچھا، کہو تم کون ہو جو میرے مقابلے پر آئے ہو؟ سب کہو، اپنی طاقت و بصارت کی کوئی داستان کہو کہ مجھے اطمینان ہو۔ خالد بن ولید نے اس سے قریب ہوتے ہوئے کہا، بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں خالد بن ولید ہوں۔ رہی تمہاری شجر نصب اور طاقت و بصارت کی کوئی داستان کہنے کی بات، تو جب تم مجھ سے ٹکراؤ گے میرا سارا شجر نصب تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک روشن دلیل کی طرح لہرا جائے گا، اور پھر تم شجر نصب جان کر کیا کرو گے جب اس میدان سے تھوڑی دیر بعد تمہاری لاش اٹھ رہی ہوگی؟ اس ایرانی پہلوان نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی کامیابی اور فتح مندی کا ایسا ہی یقین ہے کہ میرے متعلق سب کچھ سننے کے بعد بھی تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ خالد بن ولید نے باروب آواز میں کہا، دیکھ، میرے ہاتھوں تھوڑی دیر بعد قتل ہو جانے والے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ میری قسمت میں شہادت نہیں لکھی ہوئی، سو میرا ایمان ہے جو مجھ سے ٹکرائے گا وہ مغلوب اور میں اس پر غالب ہوں گا، اور یہ اس خطاب کی برکت سے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس ایرانی پہلوان نے آگے بڑھ کر خالد بن ولید پر حملہ کر دیا۔ آپ نے اپنی ڈھال مار کر اس کی گرتی ہوئی تلوار کو دور ہٹا دیا، پھر آپ نے اپنی بھاری چھوٹے پل والی ترچی تلوار سے جوابی حملہ کیا جسے وہ ایرانی روک نہ سکا۔ اس کا جسم دو حصوں میں کٹ کر اس کے گھوڑے سے نیچے خشک پیاسی زمین پر گر گیا تھا۔ انفرادی جنگ میں اپنے بہترین پہلوان کے خالد بن ولید کے ہاتھوں قتل ہو جانے پر ایرانی جرنیل اندر ظہر نے کسی اور کو انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں نہ اتارا اور جنگ کی ابتدا کر دی۔ اندر ظہر نے اس لڑائی میں ایرانیوں کو قتل عام سے بچانے کے لیے عربوں کو عربوں سے ٹکرانے کی کوشش کی۔ اس نے سب سے پہلے بنو بکر کے ان عربوں کو جو ابھی تک نصرانی تھے جنگ کے لیے آگے بڑھایا تاکہ مسلمانوں کی پہلی ضرب وہی برداشت کریں یا مسلمانوں پر ایسی ضرب لگائیں کہ بعد میں ایرانیوں کے لیے جنگ کرنا سہل ہو جائے۔ بنو بکر کے نصرانی عرب چونکہ ایرانی لشکر کے ایک حصے کے طور پر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے اور پہلی ضرب لگا کر مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے، لہٰذا خالد بن ولید بھی اپنے سارے لشکر کو ان کے مقابلے پر نہ لائے۔ انہوں نے بنو بکر کے ان نصرانیوں سے نمٹنے کے لیے عدیم کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید کا حکم ملتے ہی عدیم اپنے میسرہ کے ساتھ برق رفتاری سے آگے بڑھا تھا۔ عدیم کے میسرہ میں زیادہ تر ربیہ اور خضر قبائل کے عرب تھے۔ عدیم کی سرکردگی میں ربیہ اور خضر کے یہ عرب آگے بڑھے اور وہ بنو بکر کے عرب نصرانیوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ بنو بکر کے نصرانیوں نے اپنی پوری کوشش کر کے اور مسلمانوں کے سامنے جم کر انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ہر سعی ناکارہ و نامراد گئی۔ مسلمانوں پر وہ عدم سے اچانک نمودار ہو کر حشر برپا کر دینے والے قدرت کے عناصر کی طرح ظاہر ہو کر بنو بکر پر اپنی فہم ادراک کی پوری فصاحت کے ساتھ حملہ آور ہوئے تھے۔ انہوں نے موت کی بدبختی کو بنو بکر کے پیچھے لگا دیا تھا اور بڑی تیزی سے انہیں فنا کے گھاٹ اتار کر ان کے پیاسے نفس کو خون سے سیراب کرنے لگے تھے۔ اب مسلمانوں کے سامنے بنو بکر کے نصرانیوں کی حالت بین کرتی اس ماں جیسی تھی جس کا اکلوتا بیٹا مارا گیا ہو۔ ایرانی جرنیل اندر ظہر نے جب دیکھا کہ اسلامی لشکر کے ایک حصے نے بنی بکر کے نصرانیوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے تو وہ بڑا غضبناک ہوا۔ اسی باولے پن کی حالت میں اندر ظہر نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اندر ظہر ایسا کرنے میں حق بجانب بھی تھا کیونکہ اس کے لشکر کی تعداد خالد بن ولید کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایک زوردار حملہ کر کے جنگ کے نتائج کو اپنے حق میں کر لینا چاہتا تھا۔ ایک طوفان، ایک کوہرام کی صورت میں اندر ظہر اپنے جرار لشکر کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ خالد بن ولید بھی ایرانی لشکر کی قوت سے بے خبر نہ تھے۔ گزشتہ رات ہی اپنی لشکر کے دو حصوں کو دائیں بائیں گھات میں بٹھا کر اس اندھی قوت سے نمٹنے کا انتظام کر لیا تھا۔
अंदर ज़गर जब बिपरे अंधे तूफान की सूरत में आगे बढ़ा तो खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर के साथ पीछे हटना शुरू कर दिया था। यहाँ वो अपनी उम्दा तरीन जंगी फरासत और जहानत का मुजाहरा कर रहे थे। खालिद बिन वलीद के इस तरह पीछे हटने को अंदर ज़गर ने मुसलमानों की कमजोरी और पसपाई जाना और इसी अकदाम से वो अपने लश्कर का हौसला बढ़ाता हुआ और ज्यादा जहरीले अंदाज में आगे बढ़ा था। खालिद बिन वलीद पीछे हटते रहे और जब उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि अंदर ज़गर अपने लश्कर के साथ अंधाधुन आगे बढ़ता हुआ उस जगह आ गया है जहां उन्होंने अपने लश्कर के दो हिस्से दाएं बाएं घात में बिठा रखे थे, तो खालिद बिन वलीद ने अपनी लश्कर की पसपाई रोक दी। फिर उन्होंने अपनी तलवार फिजा में बुलंद करते हुए नदियों की रवानी की तरह अपने रब की तकबीरें बुलंद की। फिर अपने लश्कर को उन्होंने दुश्मन पर हमला आवर होने का हुक्म दिया था। सामने की तरफ से खालिद बिन वलीद अदीम और मसना हमला आवर हुए थे और दाएं बाएं घात में बैठे हुए मुजाहिदीन ने बसर और सईद की सरकर्दगी में अपनी कमीन गाहों से निकलकर करन हाकरन के पके हुए लावे की तरह निकलकर अंदर ज़गर के लश्कर पर हमला कर दिया था। ईरानी लश्कर के अंदर हर तरफ दुखती दिल की जलन और मजलूम की फरियादों की तरह एक शोर उठ खड़ा हुआ था। मुसलमानों ने तीन अतराफ से ईरानियों को घेर कर उनका कत्लेआम शुरू कर दिया था। वलाजा के मैदानों में लोहे से लोहा टकराने, घोड़ों के हिनहिनाने और इंसानी आहों फगां से एक तूफान बर्पा हो गया था। खालिद बिन वलीद का हर लश्करी दुश्मन के जरार लश्कर के अंदर एक खंजर, एक निश्तर और एक शोले की मानिंद घुसता जा रहा था। बड़े बड़े ग्रांडेल ईरानी पहलवान जंग की चक्की के आहनी पाटों तले पिस कर रह गए थे। खालिद बिन वलीद अपनी तेज नारों से जंग में लम्हा बलम्हा तेजी, हिद्दत और खौफनाकी पैदा करते जा रहे थे। हर मुसलमान मुजाहिद ऐसे अंदाज में ईरानियों से बरसरे पैकार था गोया वो अपने रब की बारगाही जमाल में अपने खून को फूलों के तराने फिजाओं के अंदर ताजगी की नमूद बनाकर पेश करने का अज़म कर चुका हो। सापहर के बाद तक मुसलमान ईरानियों के अंदर तख्लीक का एजाज पैदा करते हुए उन्हें काटते रहे। ईरानियों ने जब देखा कि उनका लश्कर जो मुसलमानों से कई गुना ज्यादा था अब कट कट कर मुसलमानों से कम होता नजर आ रहा है, तो वो मैदान से जी चुराकर भाग खड़े हुए। खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ उनका ताकुब करके उनकी तादाद को कम कर रहे थे। बहुत कम ईरानी अपनी जान बचाकर भाग सके। ईरानी जर्नेल अंदर ज़गर को भी जान बचाकर भागना नसीब न हुआ और वो फरार की हालत में ही मर गया। इस जंग में मालो असबाब के ढेर मुसलमानों के हाथ लगे जो ईरानी और अरब कबाइल अपने साथ लेकर आए थे। अनाज और खाने की अशिया इस कदर ईरानी छोड़कर भागे थे जो कई माह तक खालिद बिन वलीद के लश्कर के लिए काफी थी। शाम से पहले ही खालिद बिन वलीद दुश्मन का ताकुब खत्म करके अपने पड़ाव में वापस आ गए थे। अपने खेमे के पास आकर अदीम अपने घोड़े से उतरा और जब वो अपने घोड़े को बांधने के लिए कोंटे की तरफ जाने लगा तो अंदर से सीरिया भागती हुई निकली और अदीम से कहा, मैं आपको इस जंग की फतह पर मुबारकबाद देती हूँ। फिर सीरिया ने अदीम से घोड़े की बाग ले ली और उसे खोंटे से बांधने लगी। अदीम उसे प्यारो मोहब्बत से देखे जा रहा था। घोड़े को बांधकर सीरिया मोड़ी, फिर वो अदीम का हाथ पकड़कर खेमे के अंदर ले जा रही थी। किसरा ईरान का दूसरा जर्नेल बहमन जाजुया अभी कैसासा के मैदानों में अपने लश्कर के साथ आकर खेमाजान ही हुआ था कि उसे अपने साथी जर्नेल अंदर ज़गर के मरने और ईरानी लश्कर की बदतरीन शिकस्त की खबर पहुंची। उसने फौरन कुछ तेज रफ्तार घुड़सवार रवाना किए ताकि जंग से बचकर फरार करने वाले ईरानी लश्करियों का रुख फेर कर कैसासा के मैदानों की तरफ ले आए। बहमन जादुया नहीं चाहता था कि ये शिकस्त खुर्दा अनासर ईरान के अंदरूनी हिस्सों में जाकर अंदर ज़गर की मौत और अपनी शिकस्त के बायस लोगों में और बददिली फैलाएं, और फिर इसमें बहमन जादुया की भी बदनामी थी क्योंकि उसने तो बरक रफ्तारी से काबा काट कर खालिद बिन वलीद के लश्कर पर अकब से हमला आवर होना था, जबकि खालिद बिन वलीद ने ईरान के दोनों लश्करों को आपस में मिलने नहीं दिया और बहमन के पहुंचने से पहले ही अंदर ज़गर को उसके लश्कर समेत फना के घाट उतार दिया था। बहमन की सारी एहतियात के बावजूद किसरा ईरान को इस शिकस्त की खबर हो गई जिसे सुनकर वो बीमार हो गया था। ताहम उसने एक तेज रफ्तार कासद बहमन जादुया की तरफ रवाना किया और उसे हुक्म दिया कि वो कैसासा से कूच करके दरिया फुरात के साहिल पर उलीस के मकाम पर जाकर अपने लश्कर के साथ खेमाजान हो और मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारियां शुरू करो। किसरा ईरान ने बहमन जादुया को ये भी हुक्म दिया कि इर्द गिर्द जिस कदर नसरानी अरब कबाइल हैं सबको अपने साथ मिलाकर मुसलमानों से मुकाबला खड़ा करो
बहमन जादोया ने फौरन इस पर अमल किया। उसने मुख्तलिफ अरब नसरानी कबाइल की तरफ वफूद भेजे और उनसे कहा कि वो अपनी सरजमीनों पर जिंदा रहना चाहते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ मुसल्लह होकर उठ खड़े हों, वरना मुसलमान उन्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। बहमन जादोया अभी केसासा से उलीस की तरफ कूच करने की तैयारी कर ही रहा था कि हजारों अरबों पर मुश्तमिल एक लश्कर वहां पहुंचा। उस लश्कर को दूर से आते देखकर बहमन जादोया को शक हुआ कि शायद अंदर ज़फ़र के लश्कर से निमटने के बाद मुसलमान उस पर हमला आवर होने को आ गए हैं। लिहाजा उसने फौरन अपनी लश्कर को मुनज़्ज़म करके जंग के लिए तैयार कर लिया। साथ ही कुछ सवारों को उस आने वाले लश्कर की कैफियत मालूम करने को रवाना किया। थोड़ी देर बाद उसके भेजे हुए सवार उस लश्कर के आगे आगे आते दिखाई दिए, जिसका मतलब ये था कि आने वाले दुश्मन नहीं दोस्त हैं। फिर वो नया लश्कर बहमन के लश्कर से जरा फासले पर खैमाजान होने लगा। उस लश्कर की कैफियत जानने के लिए बहमन खुद उसकी तरफ बढ़ा, जबकि उस लश्कर की तरफ से भी कुछ लोग बहमन की तरफ आए। उनके साथ बहमन के सवार भी थे, जिन्होंने अपने साथ आने वालों को बहमन के मुतालिक बताया। आने वाले अपने हुलिये लिबास से अरब लगते थे और तादाद में 4 थे। उन चारों ने करीब आकर बहमन से गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया। फिर उनमें से एक ने कहा, मेरा नाम अब्दुल अस्वद है और मैं बनु अजल से हूँ। मेरे ये तीनों साथी भी अपने अपने कबाइल के सरदार हैं। इनके नाम जाबिर, मालिक बिन कैस और अबजर हैं। हम नसरानी हैं और तुम्हारे लश्कर में शामिल होने को आए हैं। जंगी वलाजा में मुसलमानों ने हमारे काफ़ी आदमियों को तहतीक किया था, खासकर बकर बिन वाइल के बहुत से हमारे नसरानी भाई मौत के घाट उतारे गए। हम मुसलमानों से उनका इंतकाम लेने आए हैं। अगर मुसलमान अरब हैं तो हम भी अरब हैं। हम उन्हें बताएंगे कि हमारे खिलाफ जंग जीतना मुमकिन नहीं है। हम तुम्हारे साथ वादा करते हैं कि हम मुसलमानों को उन्हीं सहराओं की तरफ धकेल देंगे जिस तरफ से निकलकर ये इधर आए हैं। बहमन जादोया उन नसरानी अरब सरदारों को अपने लश्कर में ले गया। उनकी खूब आओ भगत की। उनके सारे लश्कर को भी खाने को उम्दा अशियाँ पेश की। साथ ही उसने अरब सरदारों को मशवरा दिया कि मैं अपने एक मातहत जनरल जाबान को लश्कर के साथ उलीस के मैदान की तरफ रवाना कर रहा हूँ। तुम उसके साथ जाओ और मैं खुद किसरा की तरफ रवाना होता हूँ ताकि वहाँ से मुसलमानों के खिलाफ और कुमक लेकर आऊँ। अरब सरदारों ने बहमन की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। कुमक लाने का एक बहाना था, वरना बहमन जादोया मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से जी छुड़ा रहा था। उसी रोज बहमन जादोया का मातहत जनरल अपने और अरबों के मुत्तहिदा लश्कर के साथ दरिया फुरात के किनारे उलीस की तरफ रवाना हो गया, जबकि बहमन मदाइन की तरफ कूच कर गया था। मदाइन पहुंचकर बहमन को खबर हुई कि किसरा ईरान बीमार पड़ा है। लिहाजा बहमन ने कुमक लेकर उलीस के मैदानों में जाबान की मदद को आने के बजाय चापलूसी से काम लेकर किसरा ईरान को अपने हक में राजी कर लिया और उसकी इजाज़त से वो वहीं रुककर उसकी तीमारदारी करने लगा था। खालिद बिन वलीद अभी तक वलाजाही में मुकीम थे कि उन्हें उनके जासूसों ने खबर दी कि नसरानी अरब और किसानों पर मुश्तमिल एक लश्कर मुसलमानों के खिलाफ पुलिस के मैदानों में जमा हो रहा है और ये कि ईरानी जनरल जाबान भी एक बहुत बड़ी ईरानी लश्कर के अलावा बनु अजल और दीगर नसरानी अरबों को लेकर पुलिस के मैदानों की तरफ बढ़ रहा है। खालिद बिन वलीद ने उसी वक्त अपनी लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया था। अभी लश्कर के खैमे उकेड़ कर सामान समेटा जा रहा था कि लश्कर में 5 सवार दाखिल हुए और लश्करियों से पूछते हुए वो खालिद बिन वलीद की तरफ बढ़े। उस वक्त खालिद बिन वलीद, अदीम, मसना बिन हारिसा और कुछ दीगर सालार एक जगह खड़े अपनी कूच से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे कि वो 5 सवार आए। नजदीक आकर उन्होंने सलाम कहा और अपनी घोड़ों से वो नीचे उतर गए। फिर उनमें से एक ने कहा, क्या आप लोग अपना तारुफ न कराएंगे कि हम अपने मुतालिक कुछ कहें। खालिद बिन वलीद ने अपना और दीगर सबका तारुफ कराया। वो 5 आगे बढ़े। पहले उन्होंने सबके साथ मुसाफा किया। फिर उसी ने कहा जिसने गुफ्तगू का आगाज किया था, मैं उतबा बिन निहास हूँ। मेरे साथ सईद बिन मर्रा, फरात बिन हयान, मसना बिन लाहक और मज़ऊर बिन अदवान है। हमारा ताल्लुक बनु अजर से है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 मुसलमान हैं। हमारे कबीले के अक्सर लोग अभी तक नसरानी हैं, ताहम कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया है। हमारे कबीले के सब नसरानी अबुल अस्वद, अबजर और मालिक बिन कैस की सरकर्दगी में बनु अजल और बकर बिन वाइल के मुसल्लह और जंगजू लोगों पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार करके ईरानी लश्कर के जनरल जाबान से जा मिले हैं और अब वो सारे आपके साथ
एक फैसला कुन जंग करने की खातर दरिया फुरात के किनारे उलियस के मैदानों की तरफ कूच कर गए हैं। मुतहिद होने वाले उन अरब नसरानियों के लश्कर का सालार अब्दुल असवद है, मालिक बिन कैस और अब्जर उसके नायब हैं, और उन तीनों ने इंजील पर हाथ रखकर कस्में खाई हैं कि वो मुसलमानों को या तो मौत के घाट उतारेंगे या उन्हें उन सहराओं की तरफ धकेल देंगे जिधर से वो आए हैं। हम आपकी तरफ शीबानी कबाइल के सरदार हानी के कहने पर इधर आए हैं। हानी और उसके कबाइल के अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उसने हमें इसलिए आपकी तरफ रवाना किया है ताकि हम आपको ईरानी और नसरानियों के इत्तेहाद की इत्तला करें। हानी खुद एक जमीयत के साथ आपके लश्कर में शामिल होता, लेकिन इन दिनों नसरानी कबाइल ने उन लोगों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, और हानी अपने कबाइल के मुसल्लह जवानों के साथ मिलकर आजकल उन हमला आवर नसरानियों से मुसलमानों की हिफाजत के फराइज अंजाम दे रहा है। उसने कई मौक़ों पर उन हमला आवरों को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया है और उन्हें अपने अपने कबाइल की तरफ भाग जाने पर मजबूर किया है। हमें रुखसत करते वक्त वो बड़े दुख से कह रहा था, काश मैं अपने कबीले के जवानों के साथ खालिद बिन वलीद के लश्कर में शामिल हो सकता। खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं हानी और तुम सब लोगों का ममनून हूँ जो तुमने मुझे ईरानियों और नसरानियों के इस इत्तेहाद की इत्तला की। हमारा रब हमारे साथ है और इंशाअल्लाह उलियस के मैदानों के अंदर मैं अपने लश्कर के साथ इस इत्तेहाद को पारा पारा और लख लख करके रख दूंगा। उतबा बिन निहास ने कहा, हम पांचों अब वापस जाएंगे और बनु अजल के अलावा दीगर अरब कबाइल के 9 मुस्लिमों को भी अपने साथ मिलाकर उलियस के मैदानों में आपके लश्कर में आज शामिल होंगे। इसके बाद उतबा बिन निहास और उसके चारों साथियों ने सबके साथ मुसाफा किया और वहां से वो रुखसत होकर चले गए थे। दरिया फुरात के किनारे उलियस के मैदानों में जाबान दूर दूर तक अपने लश्कर के साथ खैमाजान था। दोपहर के वक्त जबकि लश्कर के लिए खाना तैयार हो चुका था, जिस वक्त खाना लगा दिया गया और लश्करी खाने पर बैठने लगे, खालिद बिन वलीद अपनी लश्कर के साथ वहां पहुंच गए और दुश्मन के सामने खैमाजान होने लगे। जाबान भी अब्दुल असवद, मालिक बिन कैस, अब्जर, जाबिर और दीगर अरब और ईरानी सालारों के साथ दस्तरखान पर बैठ चुका था, ताहम अभी खाना शुरू न हुआ था। इस मौके पर जाबान ने बोलते हुए अरब सरदारों से पूछा, क्या ख्याल है, पहले इन मुसलमानों की खबर ले लें या अपने लश्कर को खाना खिला दें? अरब सरदारों में से अब्दुल असवद ने कहा, मेरा ख्याल है पहले अपने लश्कर को खाना खिलाकर फारिग कर दें, फिर आराम से उठकर इन मुसलमानों से निमट लेंगे। हमारे मुकाबले में इनकी तादाद ही क्या है, सिर्फ चंद लम्हों की जंग में ही हम इन मुट्ठी भर मुसलमानों को दरिया फुरात के किनारे उलियस के मैदानों में मौत की गहरी नींद सुला देंगे। जाबान ने कहा, मेरा दिल कहता है आने वाले ये लोग तुम लोगों को खाना न खाने देंगे और जंग की दावत दे देंगे। अरब सरदारों ने जाबान की बात न मानी और इसरार किया कि मुसलमान उनके सिर्फ एक झटके की मार हैं, लिहाजा खाने के बाद इनसे निमट लेंगे। जाबान अभी लश्कर में खाना शुरू करने का ऐलान करने ही वाला था कि खालिद बिन वलीद मैदान में उतरे और इनफिरादी जंग की दावत देती हुई उन्होंने जोर जोर से अरब सरदारों को पुकारना शुरू किया, मैं खालिद बिन वलीद हूँ, कहाँ है अब्दुल असवद, कहाँ है मालिक बिन कैस और कहाँ है अब्जर और जाबिर। खालिद बिन वलीद की इस ललकार और पुकार पर ईरानी लश्कर में एक नाकाबिल बर्दाश्त सन्नाटा छा गया था। ऐसे में ईरानी लश्करी और नसरानी अरब खालिद बिन वलीद की जुर्रतमंदाना पुकार पर अफसरदा और परेशान हो गए थे। खालिद बिन वलीद की पुकार पर अब्दुल असवद, अब्जर और जाबिर तो खामोश रहे, ताहम मालिक बिन कैस गुस्से की हालत में उठ खड़ा हुआ और जाबान की तरफ देखते हुए उसने कहा, मुझ पर आज का खाना उस वक्त तक हराम है जब तक मैं इस खालिद बिन वलीद का सर काट कर और उसे अपने नेज़े में गाड़ कर आपके पूरे लश्कर में न फिराऊं। मैं उसे बता दूंगा कि नसरानी अरब लड़ने मारने का फन उनसे कहीं बेहतर जानते हैं, उन्होंने हमारी सिर्फ नरम गामी ही देखी है। मैं उसे इस जंग में सफ़ेद भेड़ों की तरह हाँक दूंगा। ऐ जाबान देख, मैं अब इस मुकाबले के लिए मैदान में उतरूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे मैं खालिद बिन वलीद पर गालिब रहता हूँ। जाबान ने कहा, हाँ तुम इसके मुकाबले में उतरो, मैं समझता हूँ कि तुम सहरे अरब के इन बाजीगरों के सारे दम खम निकाल दोगे। हम सब तुम्हारे लिए दुआगो हैं। अपने घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरो, उनके ऊपर से उनके नूरानी गिलाफ उतार दो, उन्हें इस मैदान में ऐसा मारो कि उन्हें उनके सारे कहना जुर्मों की सजा दो।
मालिक बिन कैस अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसे एड़ लगाकर वो मैदान में उतरा था। अपने घोड़े को एड़ पर एड़ लगाता भगाता हुआ मालिक बिन कैस खालिद बिन वलीद के सामने आ रुका और कहा, ऐ मुसलमानों के सालार, तूने अब्दुल अस्वद, अब्जर और मालिक बिन कैस के अलावा जाबर को मैदान में उतरने के लिए पुकारा था। क्या तुझ पर तेरी खुद पसंदी ऐसी ही ऊद कराई है कि तू मुझ जैसे तेगान को दावत मुबारजा देता है? मैंने सहरे अरब के बड़े बड़े सुरमाओं को ज़ेर किया। आह, डर उस वक्त से जब तेरी माँ और तेरी अहलिया तेरी मर्द पर बैन कर रही होंगी। खालिद बिन वलीद ने कहा, ऐ बदकार औरत के बेटे, सारा ईरानी लश्कर मेरी इस पुकार और ललकार पर दुबक कर खामोश हो गया था। तुझे मेरे मुकाबल आने की कैसे जुर्रत और जसारत हुई? तेरे जैसे कई बावले मेरे मुकाबल आए, पर मैंने उनकी सरहदी इदराक और अंदाजे पर ऐसी ज़रबे लगाई कि वो अफला की गर्दश में खो कर रह गए। देख, मैं तुझ पर हमला आवर होता हूँ, अगर मुझे रोक सकता है तो रोक दिखा। खालिद बिन वलीद ने अपनी घोड़े को सख्त महमीज लगाई, फिर वो गैर मादी मुतहरक सायों की तरह हमला आवर हो गए थे। मालिक बिन कैस खालिद बिन वलीद का पहले ही बार बर्दाश्त न कर सका। आपकी तलवार ने मालिक बिन कैस को काट कर रख दिया। वो अपने घोड़े से गिर गया और उसके कटे हुए जिस्म से जीता जीता सुर्ख खून बहकर जमीन को लहू रंग करने लगा था।